From the traders to the workers to the laborers, all of them are largely migrants. Some came 20 years ago, 15 years ago, 5, 10 years ago. What is the mood among the textile traders and their issues, or is it for them, at least on camera, BJP all the way? Let's find out. Surat is not just about diamond traders, it's a hub for many things. Also a huge sprawling textile market. You look at this road right here. This is a road, and for kilometers on both sides of the road, you have got huge buildings where traders who trade in the textile industry have come here from many different parts of the country. They are not just Gujaratis. Many of them from Rajasthan, from Haryana, from Jharkhand, and they've all kind of owned up this trade, and they are now bona fide voters. But what are their issues, and which political party resonates most with them? Also, is there a divide in the way they approach the politics of this country? In 3 broad points. One, that I am very happy and I don't want change. Number 2, that I am unhappy but I don't want change. And number 3, I am unhappy and I want change. And if that is the case, who do I vote for? Because these are Pravasis, because these are people who are non-Gujaratis, you see even the messaging changes to Hindi in these parts. Take a look at that poster, for instance. That is the Minister of State for Home, Youth and Sports Affairs in the Gujarat government, Harsh Sanghvi. He is from Surat. And for an otherwise very, very proud state in the Gujarati language, where most messaging always in the state is going to be in Gujarati, in these parts where there are a lot of these Pravasi voters, the messaging, Praveen will show you, is actually in Devanagari, it's in Hindi, to appeal to each and every voter. So this poster says, Sabka Ladla, Sabka Pyara, Harsh Sanghvi, Surat ka Harsh, Harsh ka Surat. Let's try and find out and speak to a few of the traders here, workers here in the textile market, as to what their issues are and do they really want change. मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूँ. आपका शुभ नाम? नमस्कार, रमेश भाटिया, केडी भाटिया, ये सामने. अच्छा, ये आपकी शॉप है? केडी भाटिया शॉप. मैंने देखा एक आपने ये स्ट्रिप लगा रखी है, रनिंग स्ट्रिप. प्रवीण आपको दिखाएंगे. उसमें लिखा है राष्ट्र हित के लिए वोट डालिए. हाँ, क्या लिखा है आपने? देना चाहिए, राष्ट्र हित के लिए वोट देना चाहिए. ये संदेश किसके लिए भाटिया जी? पूरे गुजरात के सभी के लिए. रोहतक से आप यहाँ आए 30 साल पहले अपना बिजनेस यहाँ पर जमा. बिजनेस है, बहुत अच्छा है. ये जो पूरा अपना ये गुजरात स्टेट है, यहाँ पे नहीं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, सबसे यहाँ लोग आए हुए हैं. व्यापार अच्छा चल रहा है, सब लोग सुरक्षित है. जीएसटी आने के बाद भी हमारे को फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है. फ्री का लालच नहीं चाहिए हमें. ये बोलना चाहिए 300 यूनिट और ये जो फ्री का लालच देते हैं वो नहीं चाहिए हमें. केजरीवाल और राहुल गांधी तो बिल्कुल चाहिए ही नहीं. हमारे चिन्ह है तो जो चुनाव करते हैं वो मोदी जी को करते हैं बस. 2014 तक मोदी राज था यहाँ पे, उसके बाद मोदी जी यहाँ हमने उनको प्रमोट करके दिल्ली भेज दिया. आज सब लोग यही कहते हैं मोदी जी गए हैं, गुजरात से गए हैं. गुजरात में उनको स्वास्थ्य का व्यवस्था इतनी अच्छी देखी लोगों ने कि उनको पूरे देश में राज दिया. एक दुकान में कर्मचारी काम करते हैं, उनका कौन सा मेडिकल मिलता है? कुछ पीएफ कटता है? नहीं कटता है. जब चाहे नौकरी पे निकाल देते हैं, 12 घंटे काम कराते हैं, कमोडिटी में या मिलों में कहीं भी हो. ये सच तो सामने लाते नहीं है. आप एक आदमी खड़े हैं, पूछो सबको. बताओ, आप सबको बड़े बड़े दुकानदार का पूछ रहे हैं. मैं सबसे पूछ रहा हूँ, तो कोई बता क्यों नहीं रहा? मैं तो यहाँ मैं पूछने के लिए आया. क्यों निकालते हैं? बताइए. हम देखो, मैं किलांग हूँ, ये खड़े हैं केडी भाटिया साहब. हमारा काम करवाया, हमारा निकाल दिया. मंदी है तो निकाल दिया, तेजी है तो रख लिया. क्यों? इसलिए हमारा अधिकार है, हम बोलेंगे. मैं भी पानीपत से हूँ, हरियाणा से हूँ. मैं बताइए भाटिया जी, पानीपत हरियाणा से हूँ, कह रहे हैं आपने निकाल दिया उनको. अभी इसके लिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता. 2 महीना काम पर रखा, फिर वो बोलता मत ही आगे जाओ. और बताओ, निकामा आज 1 महीना से घूम रहा हूँ. जो 2 महीना कमाया वो खा रहा हूँ. ये अन्नपूर्णा में रोड पर सो रहा हूँ, नहा रहा हूँ संडास में. यूपी से आया हूँ, नौकरी मांगो, नौकरी यही नहीं है. बताओ, भाषण देने सब आते हैं, हर क्वालिटी वाले. जैसे इस महंगाई में 8,000, 9,000, 12,000 सैलरी में कैसे होगा? गैस बाटला हो गया अभी 1100 रुपये मान के चलिए. भैया एक्चुअली
जब चुनाव नजदीक आता है ना, ये सब चीजें हम आगे बोल देते हैं कि हमको महंगाई की वजह से त्रस्त है, किसी को पोसा नहीं रहा है, किसी के ऊपर महंगाई भारी है, सब चीजें। पर जिस दिन वोट देने जाते हैं तो जो डायनेमिक्स पे पहले से वोट दे रहे होते हैं उसी डायनेमिक्स पे वोट दे देते हैं। इसी डायनेमिक्स के कारण सूरत में इलेक्शन सर 16 में से 13 सीट पे इलेक्शन ही नहीं है।